Hello and welcome to my new session, each and every one of you. Most welcome. Today we will see chapter number 1, The Living World of NCERT textbook. So, first of all, we have to know what is living. Anything which has all the properties or characters or features of living objects are called living things, like growth, reproduction, metabolism, cellular organization, and the last one is consciousness, which is very much important. So we will discuss about growth, metabolism, cellular organization, consciousness, and reproduction. In these, first we have to write what is growth, or we can write these 5 properties line by line. Now, first, growth. Second one is reproduction. Third one is cellular organization. Fourth one is metabolism. And the fifth and last one is consciousness. So we'll discuss each and every point of this unit carefully and very elaborate manner. Growth. These are characteristics, features of the living organism. Anything which shows these type of characters, they are called living organisms. And our living world is very much wonderful and vast. Very much species or many species are in this our world, so which have known or not known, named or not named. So first we have to talk about growth. What is growth? Growth, according to NCERT, the growth is increase of mass or increase of number of numbers of individual. So this is what growth means: increase of mass or increase in number of individuals. They are the twin characters of growth according to NCERT textbook. So what causes growth? ग्रोथ क्यों होता है, हमें जानना बहुत ही ज़रूरी है कि ग्रोथ अगर होता है हमारी बॉडी में या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में तो वो क्यों होता है, और क्या नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ होता है, अगर होता है तो किस प्रकार का होता है, अगर नहीं होता है तो क्यों नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे सवाल उठते हैं और उनका जवाब बायोलॉजी हमें देती है, और कुछ एक्सेप्शंस भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो आइए देखते हैं कि टाइप्स ऑफ ग्रोथ क्या क्या होते हैं। इंट्रिंसिक एंड
Intrinsic and extrinsic growth. Intrinsic growth means the growth which takes place inside the body. The growth which takes place inside the body is called intrinsic growth. And the growth which doesn't take place inside the body, it means it has the accumulations of materials over the body or on the outer surface. It is the surface process and it is inside body process. Extrinsic growth. Non-living organisms always do extrinsic growth and living organisms do intrinsic growth. Example of extrinsic growth is, जैसा कि हम देखते हैं कि रेत का टीला जो रहता है रेगिस्तान में, उसका साइज एक के ऊपर एक लेयर करके वो कभी घटता रहता है और कभी बढ़ता रहता है, तो उसको भी हम लोग कैसा मानते हैं, एक एक्सट्रिंसिक ग्रोथ या एकर्षण के रूप में ग्रोथ माना जाता है। और इंट्रिंसिक ग्रोथ सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में इंट्रिंसिक ग्रोथ ही होती है। उसके बाद होता है डिटर्मिनेंट एंड indeterminate growth. Again, growth is divided into two sub units, or we can say two sub parts, determinant और indeterminate। नाम से ही पता चल जाता है कि determinant का मतलब होता है एक definite या definite, तो और indeterminate का मतलब होता है indefinite, जो कि पेड़ पौधों में देखने को मिलता है। ग्रोथ अगर एक डेफिनेट शेप और साइज का होगा तो वो क्या कहलाएगा, डिटर्मिनेंट ग्रोथ। और जब ग्रोथ डेफिनेट शेप और साइज का नहीं होगा, उसकी वृद्धि बहुत लंबे समय तक होगी या फिर जीवन पर्यंत होती रहेगी, तो वो क्या कहलाएगा, इनडिटर्मिनेंट ग्रोथ। डिटर्मिनेंट ग्रोथ के एग्जाम्पल्स है ह्यूमंस, एनिमल्स और बाकी सब जीव जंतु भी आते हैं। और इनडिटर्मिनेंट ग्रोथ के एग्जाम्पल है प्लांट, ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड ट्रीज। तो ये था ग्रोथ। और एक वर्ड आता है डीग्रोथ। डीग्रोथ का क्या मतलब होता है, जब कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म से ज़्यादा हो जाए तो क्या होता है, डीग्रोथ होता है। और पॉजिटिव ग्रोथ क्या होती है, जब एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म से ज़्यादा हो जाए तो क्या होती है, पॉजिटिव ग्रोथ, और कॉमनली कॉल्ड एज ग्रोथ। तो यहाँ तक हमने देख लिया, ग्रोथ के बारे में समझ चुके हैं। और एक सवाल ऐसा भी उठता है कि इंट्रिंसिक ग्रोथ इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स और नॉट। तो इसका आंसर होगा इंट्रिंसिक ग्रोथ इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, बट एक्सट्रिंसिक ग्रोथ इज नॉन डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अभी देखते हैं किसके बारे में, सो नाउ वी विल सी व्हाट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये सभी जीवित जीवों की एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है या एक नेचर है या एक इसको कैरेक्टर ही मान सकते हैं, जो कि सभी जीवित जीवों में होती है। इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, इसीलिए इसको नॉन डिफाइनिंग फीचर में रखा गया है। ग्रोथ और रिप्रोडक्शन इन दोनों को नॉन डिफाइनिंग फीचर में रखा गया है। और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन से लेकर के कॉन्शियसनेस तक डिफाइनिंग फीचर में रखा गया है। अब हम जान सकते हैं कि डिफाइनिंग फीचर का मतलब क्या है और नॉन डिफाइनिंग फीचर का मतलब क्या है। नॉन डिफाइनिंग फीचर का मतलब ये है जिसका एक्सेप्शन
हो, और डिफाइनिंग फीचर का मतलब ये है जिसका कोई भी एक्सेप्शन ना हो। तो हम अभी देख रहे हैं रिप्रोडक्शन के बारे में। तो रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन एक वह प्रक्रिया है जिसे हिंदी में प्रजनन कहते हैं, और जिसके थ्रू एक मैच्योर्ड बॉडी या मैच्योर्ड ऑर्गेनिज्म अपने स्पीसीज के नंबर्स को मेंटेन रखता है। और एक और इसका स्टेटमेंट है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इन अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर सिनोनिमस। ये ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में सिनोनिम्स है, या एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। तो अभी देखना है रिप्रोडक्शन। आफ्टर a certain age of maturity, living reproduction process to produce progeny, और ऑफस्प्रिंग। ये हम जान सकते हैं बहुत ही आसानी से। आफ्टर सर्टेन एज ऑफ मेच्योरिटी, लिविंग ऑर्गेनिज्म टू रिप्रोडक्शन प्रोसेस टू प्रोड्यूस प्रोजेनी, ऑफस्प्रिंग और अ न्यू फीटस और अ न्यू स्पीसीज। ठीक है, तो अब देखते हैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। दो टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेटिक फ्यूजन नहीं होता है। गैमेटिक फ्यूजन नहीं होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, या गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट का फॉर्मेशन होता है, फ्यूजन होता है, और इनके भी कुछ टाइप्स हैं और इसके अंडर भी कुछ टाइप्स हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर फॉर्मेशन की मदद से होता है, फ्रेगमेंटेशन की मदद से होता है, बाइनरी फिजन की मदद से होता है, बडिंग की मदद से होता है, और भी बहुत सारे प्रकार हैं इसके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फॉर्म के। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तो एक ही प्रकार है, दो प्रकार है। एक है इंटरनल फर्टिलाइजेशन के थ्रू, और एक होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के थ्रू। इंटरनल फर्टिलाइजेशन व्हेन अ बेबी और अ fetus is produced inside the body of female, it is called inside sexual fertilization. And whenever the fetus is produced outside the body, it is called external fertilization. और एक बार मैं बता देता हूँ, जब फर्टिलाइजेशन बॉडी के आउटसाइड होता है तो वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहलाता है, और जब फर्टिलाइजेशन बॉडी के इनसाइड होता है तो वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहलाता है। तो ये था रिप्रोडक्शन के थ्रू आप देख सकते हैं। और ये क्या है, नॉन डिफाइनिंग फीचर कैसे हैं, अब मैं आपको बताता हूँ। इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि हम जानते हैं कि कुछ ह्यूमन बीइंग्स होते हैं जो कि रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, जैसे कि उनके बेबी नहीं हो पाता है, या उनके बेबी होने की कैपेबिलिटी बहुत कम होती है या नहीं होती है। तो
उनको हम नॉन लिविंग तो नहीं कह सकते, वो लिविंग है, बस उनमें रिप्रोडक्शन की कैपेबिलिटी नहीं है। इसीलिए रिप्रोडक्शन को भी नॉन डिफाइनिंग फीचर में रखा गया है। और वर्कर बीज आप जानते होंगे, जो मधुमक्खी के साथ रहते हैं वर्कर बीज, वो भी रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी नहीं रखते हैं। और स्टेराइल मेल्स, फीमेल्स, म्यूल्स, ये सब हैं क्या, एक्सेप्शंस, जो कि रिप्रोडक्शन के अंदर आते हैं और नॉन डिफाइनिंग फीचर में रिप्रोडक्शन को रखने के कारण है। उसके बाद है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। हम अभी देखने वाले हैं थर्ड पॉइंट, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ये क्या होता है? ये भी एक स्पेसिफिक कैरेक्टर है या एक डिफाइनिंग फीचर है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स को दर्शाना ही पड़ता है कि अगर वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन उनमें होगी ही, क्योंकि ऐसा कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं है जिनमें बिना सेल के वो जीवित रह सके या उनकी बॉडी सेल से नहीं बनी हो। सेल और सेल के बाद टिश्यू, टिश्यू के बाद ऑर्गन, ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम के बाद एक पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है। इसके सेल के कैटेगरी पे हमें दो पार्ट मिलते हैं, यूनी सेलुलर और मल्टी सेलुलर। अब यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर तो आपको नाम से ही पता चलता होगा कि यूनिसेलुलर क्या है और मल्टी सेलुलर क्या है। यूनी मीन्स सिंगल एंड सेलुलर मीन्स ऑफ सेल्ड। इसका मतलब यह होता है कि एक कोशिकीय जीव या एक कोशिका से बने हुए सभी जीवों को यूनिसेलुलर के अंदर रखा जाता है, या इसका मीनिंग ही है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और मल्टी सेलुलर, मल्टी मीन्स बहुकोशिकीय जीव और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स ये होते हैं। इनमें जितने भी मोनेरा और प्रोटिस्टा जो हैं इनमें आते हैं यूनिसेलुलर में, और बाकी फंजाई और ह्यूमंस और हम सब भी क्या हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में आते हैं। यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर के एग्जाम्पल्स लिख लेते हैं। all monerans and all protist। और इसमें क्या होगा, टिपिकल प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ये थे कुछ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पॉइंट्स हम, और इसके आगे एक रे डायग्राम देखेंगे जिसमें किस प्रकार से सेल से लेकर के एक सेलुलर ऑर्गेनिज्म और एक ऑर्गेनाइजेशन बनता है, जिससे कि एक सेलुलर बॉडी और ऑर्गेनिज्म तैयार होता है। सबसे पहले देखेंगे तो सेल होता है, सेल के बाद ग्रुप्स ऑफ सेल होते हैं, उसके बाद ये है कुछ इस प्रकार। सबसे पहले एक सेल होता है,
उसके बाद टिश्यू आते हैं, ग्रुप ऑफ सेल कंबाइंड टू फॉर्म अ टिश्यू, और उसके बाद टिश्यू के ग्रुप्स मिल करके स्पेसिफिक वर्क करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, ऑर्गन्स जैसे कि हार्ट, लिवर, किडनी, लंग्स एक्सेट्रा। ऑर्गन सिस्टम जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ये सब क्या कहलाएंगे, ऑर्गन सिस्टम के अंदर आएंगे। और ऑर्गेनिज्म जैसे कि हमारा पूरा होल बॉडी। अभी हम देख रहे हैं मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म होता क्या है, हिंदी में इसे उपापचयी क्रियाएं कहते हैं। इनके अंदर दो टाइप के रिएक्शंस होते हैं। हमारे बॉडी में जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं सेल के अंदर, उसे क्या कहा जाता है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस, और यही होते हैं क्या, मेटाबॉलिज्म। दो पार्ट में इसे हम डिवाइड करके आसानी से जान सकते हैं। मेटाबॉलिज्म को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म मीन्स building up of smaller elements into a new complex material which is stored in our body। तो ये बिल्डिंग अप प्रोसेस है, कौन सा, एनाबॉलिज्म। पहले यहाँ लिख लेते हैं, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। एना मीन्स अप और बिल्डिंग अप। कैटाबॉलिज्म मीन्स टू कट डाउन। एनाबॉलिज्म के प्रोसेस में बड़े मॉलिक्यूल्स, एनाबॉलिज्म के प्रोसेस में छोटे मॉलिक्यूल्स मिल करके एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं जो कि हमारे बॉडी में स्टोर होता है, जैसे कि फैट, लिपिड, प्रोटीन्स एक्सेट्रा। और कैटाबॉलिज्म में वही बड़े मॉलिक्यूल्स टूट करके हमें एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। इसमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, ये रिएक्शन एनर्जी कंज्यूम करता है और ये एनर्जी रिलीज करता है। कैटाबॉलिज्म मीन्स टू कट डाउन एंड एनाबॉलिज्म मीन्स टू बिल्ड अप। जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है कॉन्शियसनेस, तो ये सबसे ज़्यादा डिफाइनिंग फीचर है एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। जब भी कोई स्टिमुली हमें हमारे तरफ आता है या हमारी बॉडी से टच होता है तो हम उसकी तरफ रिएक्ट करते हैं। इसे ही क्या कहा जाता है, कॉन्शियसनेस कहा जाता है। हमारा रिएक्ट करना ही, हमारा रिस्पॉन्ड करना ही कॉन्शियसनेस है। और इसमें मेन फंक्शन ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्वस सिस्टम का होता है। नर्वस सिस्टम इलेक्ट्रिक इम्पल्स, केमिकल सिग्नल्स, इसके फॉर्म में लाइट की स्पीड से क्या करते हैं, मैसेज को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाते हैं, या हमारी बॉडी से ब्रेन तक, ब्रेन से फिर हमारे उस बॉडी पार्ट तक, और जहाँ पे वर्क करना हो उस वर्किंग जगह पे उसको फंक्शन कराने में मदद करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमें पिन रखा हुआ है एक जगह और उस पिन पे हमारा हाथ गलती से चला गया, तो हम तुरंत उस जगह से अपना हाथ हटा लेते हैं। तो ये क्या होता है, कॉन्शियसनेस है तभी हो पा रहा है। हम आंख बंद करके भी महसूस कर सकते हैं, अगर फैन चालू है उसकी हवा को महसूस कर सकते हैं, अगर करंट लगे तो उसे भी महसूस कर सकते हैं, और हीट हो तो उसे भी महसूस कर सकते हैं, कोल्ड हो उसे भी महसूस कर सकते हैं। कॉन्शियसनेस इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इट has no exception।